بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، اور رحمتیں اور سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اے میرے رب، کشادہ کر دے میرے لیے میرا سینہ، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گراہ میری زبان کی، تاکہ وہ سمجھ سکیں میری بات کو. سلامتی ہو آپ سب پر، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں. تو کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم بذات خود اللہ کے فرامین کو قرآن سے یا پھر احادیث سے بذات خود ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں. تو جو احساس ہم محسوس کرتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو ہم ترجمے کو صرف پڑھتے ہوئے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس لیول تک اگر ہم پہنچے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ قرآن کورس 1 کا ہے. ہم نے سب وہیں سے سیکھا ہے الحمدللہ، اور اس کی تکمیل کے بعد کورس 2 کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں، اور اس سفر کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. الحمدللہ کورس 2 میں جو ہمارا مقصد، جس مقصد کو ہم لے کر جا رہے ہیں قرآن سمجھنے کا، اس میں قرآن کے انشاءاللہ پہلے 5 صفحات ہم سیکھیں گے، جن کو سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. صفحہ نمبر 1، 2، 3، 4 اور 5. برائے مہربانی آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے مائک چیک کر لیں. برائے مہربانی اپنے مائکس بند کر لیں. 5 صفحات کو ہم دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں سے یاد رکھتے ہیں، اور پھر ہر صفحے پر 4 اشارات ہیں، یعنی اللہ کے فرامین کو ان کے موضوعات کے حساب سے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کہانی یا کسی مضمون کو اس کی کسی خاص بات کی وجہ سے کوئی نام دے دیا جاتا ہے. تو یہ اس کورس کی بھی ایک بہت بڑی خاصیت ہے کہ اتنے اسمارٹ وے میں اور ماڈرن طریقے سے ہمیں قرآن سیکھنے کو مل رہا ہے، جو بالکل فطرت کے عین مطابق ہے، اور ہم اس کو دلچسپی کے ساتھ سمجھتے ہیں الحمدللہ. صفحہ نمبر 2 کا دوسرا اشارہ آج ہم سمجھنے جا رہے ہیں. تو کیا آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کر کے مجھے بتائے گا صفحہ نمبر 1 کے 4 اشارات؟ پلیز ہینڈ ریز کیجیے. آپ میں سے کون بتانا چاہے گا؟ جی سسٹر ماریا پلیز بتائیے. السلام علیکم. اشارے ہیں تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ماشاء اللہ. تو شارٹ ورڈز میں ہمیں سسٹر نے بتایا ہے، جزاک اللہ خیرن کثیر. آج ہم صفحہ نمبر 2 کا دوسرا اشارہ جو ہم سمجھ چکے تھے پچھلے ہفتے، اس کی گرامر کی دہرائی کریں گے انشاءاللہ. رائٹ. تو جیسا کہ ہم سب یہاں دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر قرآن کے دوسرے صفحے کے اشارے اور قرآنی آیات میں استعمال ہونے والے کچھ اسما اور افعال کو یہاں پر دکھایا گیا ہے، جن کی بنیادی چیزیں ہم کورس 1 میں سمجھ چکے ہیں، اور اسی کڑی کو جاری رکھتے ہوئے اسما، افعال اور بہت سارے حروف ہم سیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر کچھ اسما جو پک کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یوم، نفس اور مرض، اور ان کو جمع بنانے کے ایک نئے قاعدے کے ذریعے سے جب ان کی جمع بنائی گئی ہے، جیسے یوم سے ایام، نفس سے انفس، مرض سے امراض. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتانا بالکل بھول گئی کہ صفحہ نمبر 2 کے جو 4 اشارات ہیں، سسٹر ماریا نے ہمیں صفحہ نمبر 1 کے 4 اشارات بتائے تھے. صفحہ نمبر 2 کے 4 اشارات ہیں: کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف اور 2 رخے. تو دوسرے اشارے سے ہم نے یہ اسما پک کیے ہیں. اسی طرح سے افعال، 3 افعال یہاں موجود ہیں: خدع، شعر، کذبا. یہ بالکل جو صحت مند افعال ہم کورس 1 میں سیکھ چکے ہیں، انہی کے پیٹرن پر اگر ہم ان کو انڈرسٹینڈ کریں تو جو خدع ہے یہ فتح کے پیٹرن پر ہے. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم فتح کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کیا ہوگا؟ فتح، یفتح، افتح. بالکل ایسے ہی خدع، یخدع،
इख्दा, फातिह, मफ्तूह, खादि, मखदू, सुभान अल्लाह। और उसके बाद मस्दर है खिदा, यानी धोखा देना, ठीक है। शाअरा क्योंकि नसरा के पैटर्न पर है, तो लाइकवाइज नसरा, यंसुरु, उनसुर, तो यहाँ हम समझेंगे शाअरा, यशउरु, उशउर, नासिर, मंसूर, बिल्कुल उसी तरह शायर, मशहूर, और फिर इसका मस्दर है शुऊर, यानी समझना या शूर हासिल करना। बिल्कुल इसी तरह कज़बा फेल हमने इस सबक में से पिक किया है, जो कि ज़रबा के पैटर्न पर है। ज़रबा, यज़रिबु, इज़रिब, कज़बा, यकज़िबु, इकज़िब, ज़ारिब, मज़रूब, काज़िब, मकज़ूब, और फिर आखिर में है कज़िब, यानी झूठ बोलना। एक और इंटरेस्टिंग बात हमें याद दिलाने के लिए मैं बताना चाहूंगी कि जो हम आखिरी इशारा करते हैं इस टेबल का, जिसके लिए हम ये इशारा करते हैं, यानी सॉलिड, ये लफ्ज इतना सॉलिड क्यों है, मस्दर, वो इसलिए क्योंकि पूरे टेबल में जो हम इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं किसी एक काम को लेकर, ये उस काम का नाम है, यानी सबसे सॉलिड बात, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रामर में बेसिक चीज हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस कोर्स में, वो है कमजोर हुरूफ। हुरूफुल मुफरदात में 3 हुरूफ ऐसे हैं जो कमजोर हैं, वाव, या और अलिफ। ये हम पहले समझ चुके हैं, और ये इस कदर कमजोर है कि जब ये किसी भी फेल में आ जाते हैं तो उस फेल को भी कमजोर फेल कहा जाता है। कमजोर अफाल के बारे में इस सिलसिले में 2 बातें हम हमेशा याद रखते हैं। क्या आप में से कोई बताएगा कि वो 2 बातें कौन सी हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। जी, कमजोर अफाल के सिलसिले में कोई एक बात अगर आप बताना चाहें तो एक बात बता सकते हैं। एनी ऑफ यू? इट्स ओके, नो इश्यूज। मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। सिस्टर मारिया बताना चाह रही हैं। जी सिस्टर मारिया बताइए। कमजोर अफाल एक तो टीम वर्क के तौर पे आते हैं, यानी एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं, और जब ये इस्तेमाल होते हैं किसी भी फेल में तो उसको मुकम्मल तौर पे कमजोर फेल बना देते हैं। ओके, राइट, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। फातहा यादरबा के उनके टेबल पर आते हैं, फातहा यादरबा नासरा यंस। जी, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। ये 4 मॉडल टेबल्स अबवाब हमने पढ़े थे कोर्स 1 में। हम जो भी कमजोर फेल पढ़ेंगे, पहले तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि उन्हीं की एक कड़ी है। उन्हीं सेहतमंद अफाल को सीखने के बाद हम उन्हीं के थ्रू कमजोर अफाल की तरफ जाएंगे, ठीक है। वो किसी न किसी एक स्टाइल को मैच करेंगे। सेकंड बात ये है कि ये कमजोर हुरूफ टीम की तरह काम करते हैं, माशाल्लाह। चाहे वो कमजोर हैं, फिर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, ठीक है। अक्सर ऐसा हम देखेंगे कि जब कोई एक चला जाएगा तो उसकी जगह दूसरा ले लेगा। इस बात को हमें ज़हन में रखना है। ये बहुत ही बेहतरीन स्लाइड हमारे सामने ही है। सेहतमंद अफ़ाल जो 4 हमने पढ़े हैं कोर्स 1 में, अगर आप मुझे इनका फ़िक्रा बता दें कि क्या है, जिनके ज़रिए हम इन चारों को याद रखते हैं। कौन बताना चाहेगा आप में से? जी। चलें। फ़तह, नसरा, ज़रबा, समिया। अगर कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, वरना मार पड़ेगी तो सुन लो। इसी तरह से कमज़ोर अफ़ाल सामने हैं, और बिलतरतीब हम देख सकते हैं कि ये 6 अफ़ाल वो हैं जो हम वेरी सून इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुत से पढ़ भी चुके हैं। राइट। और कमजोर अफाल 3 तरह के होते हैं। एक तो वो जिनका पहला हर्फ कमजोर है, दूसरा वो जिनके दरमियान का हर्फ कमजोर है, यानी दूसरा हर्फ, और तीसरे फेल वो होते हैं कमजोर फेल जिनका आखिरी हर्फ कमजोर होता है, ठीक है। तो पहले कमजोर हर्फ वाला फेल हमने पहले पढ़ लिया है, वहाबा, और उसके बाद जिसके दरमियान में है वो भी हम पढ़ चुके हैं, कौला, काना। आज भी हम ऐसा ही फेल पढ़ेंगे जिसके दरमियान का हर्फ कमजोर है, जो है ज्यादा, यानी उसने ज्यादा किया, ठीक है। फेल माजी की चाबी को हम देखते हैं। डेफिनेटली पूरे टेबल को याद करने के लिए चाबियां बहुत अहम हैं। ज्यादा, उसने बढ़ाया, जादू, उन सब ने बढ़ाया, ठीक है। जिद्दा, आपने बढ़ाया, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हमें हो रही है, क्योंकि यहाँ से अलिफ भी चला गया। एक्चुअली आप क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन से जो 4 टेबल्स हैं सेहतमंद अफाल के, उनमें से ये किसके पैटर्न पर है ज्यादा? क्या कोई बताएगा आप में से?
ज़ाराबा। ज़ाराबा, माशाल्लाह। तो देखिए कि ज़ाराबा में ज़ाराबा, ज़राबू पूरा टेबल हम पढ़ते हैं। जब मज़ारी की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं यज़रिबु, यज़रिबूना। तो सेकंड लास्ट हर्फ के ऊपर यानी रा के नीचे ज़ेर है। ये बात हमें अच्छे से पता है, ठीक है? तो उस ज़ेर को हम हमेशा कंसीडर करते हैं क्योंकि वो चेंज है। इस टेबल में एक खास चेंज है वो। उसकी एक वैल्यू है, एक वर्थ है। उसको ज़हन में रखिए, तो ये बहुत आसान तरीका है कि हमें याद रहेगा कि यहाँ ज़ा के ऊपर से ज़बर ज़ेर में तब्दील क्यों हुई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कौला के टेबल में कौला और काना का टेबल नासौरा के पैटर्न पर था, तो यंसुरु यंसुरुना होता है। ये वहाँ स्वाद पर पेश है। तो हमने कौला के टेबल में लफ्ज़ पढ़ा था उल्टा, ठीक है? इसी तरह काना के टेबल में हमने इसको चेंज करके पढ़ा था कुंता। बिल्कुल ऐसे ही ये ज़राबा के पैटर्न पर है तो यहाँ हम ज़ेर लगा देंगे, ठीक है? जैसे यज़रिबु होता है तो वहीं से ज़ेर को आप ज़हन में रखिए तो ये याद करना और याद रखना आसान होगा। इसी तरह यहाँ पर जो अलिफ था वो गिर गया क्योंकि वो कमज़ोर है, ठीक है? और तीसरी चीज़ जो कन्फ्यूज़ करती है हमें वो होती है शद के यहाँ एकदम से शद क्यों आ गई? तो इसको हम सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं क्योंकि दाल और ता की आवाज़ें एक ही तरीके से प्रोनाउंस होती हैं। तो अदायगी के हिसाब से जब भी हम इसको पढ़ेंगे और ता से पहले के हर्फ जो कि दाल है उस पर जब जज़म होगी तो उसकी आवाज़ ऑटोमेटिकली गुम हो रही है। ज़िद या तो हम पढ़ेंगे ज़िद ता, दिस इज़ नॉट राइट। जब हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली पढ़ा जा रहा है ज़िद ता क्योंकि दाल और ता की आवाज़ें एक जैसी हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमें सिर्फ वहीं पर ता पर शद नज़र आएगी जब इससे पहले के दाल पर जज़म है, ठीक है? सो हम इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई एम डूइंग इट और उसके बाद मैं आपको मौका दूँगी। ज़ादा, ज़ादू, ज़िदता, ज़िदतु, ज़िदतुम, ज़िदना। अल्हम्दुलिल्लाह अरबी बोलचाल में सिस्टर नाहीद हैं, प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए। आप मुझे बताइए सिर्फ अरबी में जवाब बताइए। हल ज़ादा, नाम ज़ादा, हल ज़ादू, नाम ज़ादू, हल ज़िदता, नाम ज़िदतु, ओके। हल ज़िदतुम, नाम ज़िदना। नाम ज़िदना। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। बिट्टू ये ओके। जो आपने जित्ता के ऊपर शद वाली बात बताई है, ये दोबारा रिपीट करोगे? ये मुझे नहीं अच्छी तरह क्लियर नहीं हुई बेटा। जी मैं ये के ऊपर शद क्यों आई वैसे तो है? ये दोहराई चले मैं बता देती हूँ। एक्चुअली ये मैं आसानी के लिए, समझने के लिए ये बता रही हूँ कि देखिए दाल और ता की आवाज़ें क्योंकि एक जैसी हैं, जब हम बोलते हैं माशाल्लाह हम तजवीद की क्लासेस भी पढ़ रहे हैं, तकरीबन एक ही जगह से प्रोनाउंस होता है, दा, ता, ठीक है? तो जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अदायगी के हिसाब से हम इसको पढ़ें ज़िदता, ऑटोमेटिकली दाल बीच में से गुम हो रहा है क्योंकि एक तो दाल और ता की आवाज़ें एक जैसी हैं, तो दाल के ऊपर जज़म है, ठीक है? तो हम इसको पढ़ें ज़िदता। ऑटोमेटिकली ये पता चल रहा है कि जो शद की आवाज होती है उसमें दो तरह की आवाजें प्रोड्यूस होती है ना, जिद ता, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शद आ जाएगा, ठीक है? अगर स्टिल इसमें कोई कंफ्यूजन है तो इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप पे गाइड करूंगी बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट एंड आई हैव टू कंप्लीट इट नाउ, राइट? इंशाल्लाह जी। अब हम चलते हैं इसके मजारी की तरफ। तो यहाँ देखिए इनमें से डेफिनेटली मैं आपको बता चुकी हूँ किसी एक पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, या तो ये यजादू हो सकता है या फिर यजूदू या फिर यजीदू। तो अरबी बोलने वालों ने इसको यजीदू ही पढ़ा है और यही आसानी से मुनासिब तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो दिस इज वेरी सिंपल कि ज़्यादा में अलिफ था लेकिन अलिफ क्योंकि बीमार है, कमजोर है, वो चला गया और उसकी जगह ले ली या ने। तो ज़्यादा फिल मादी की चाबी थी और ये है यजीदू फिल मजारे। तो सिस्टर नाहिद मैं चाहूंगी कि आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप मजारे का टेबल पढ़ लीजिए प्लीज, सिर्फ अरबी में। यजीदु, यजीदूना, तजीदु, अजीदु, तजीदूना, नजीदु। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीर। जी आप में से कौन अरबी बोलचाल का हिस्सा बनना चाहेगा यहाँ? सिस्टर अरोमा है आई थिंक। जी सिस्टर अरबी में आप मुझे जवाब दीजिए और बराए मेहरबानी पूरी ऑनेस्टी से इशारात करते रहिए आप सब। हल यजीदु, नाम यजीदु, ओके। हल यजीदूना, नाम यजीदूना, हल तजीदु, नाम अजीदु, हल तजीदूना, नाम नजीदु, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीर। कि अम्र बनाने के लिए हमारे पास अभी फेल मादी की चाबी मौजूद है, फेल मुजारी की है। फेल मुजारी की चाबी हम पिक करेंगे और उसमें पहली वाली या को गिरा देंगे और आखिरी दाल के ऊपर जो पेश है उसको साकिन कर देंगे। ये रूल हम काफी दिनों से पढ़ रहे हैं कोर्स 2 में, और तो वो बन जाएगा जीद।
लेकिन अब दरमियान में जो या है वो भी कमजोर है, तो हम जब जानते हैं कि कमजोर इतना कमजोर है कि वो हुक्म जैसी चीज को देखकर डर जाता है, तो वहां से भाग जाता है। अब वो वहां से गायब हो गया तो हमारे पास रह गया जिद। ठीक है, ये हमारी फेल अम्र की चाबी है। जिद, जीदू, ला तजिद, ला तजीदू। राइट, ओके जी। अरबी बोलचाल में सिस्टर जाहिदा अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। अगर मैं आपसे कहूँ जिद तो आप क्या जवाब देंगी? जीदू। अजीदू, जज़ाकल्लाह। जीदू, नजीदू। जमा। नजीदू, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर, माशाल्लाह। अगर नहीं की तरफ हम आते हैं और मैं आपको मना कर रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ ला तजिद, आप क्या कहेंगी? ला अजीदू। ला तजीदू, ला ला तजिद का ला तजीदू। ला तजीदू, जी बिल्कुल, ला ला नजीदू, ला नजीदू, यस। जी बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, अब हमारे पास है इस टेबल का आखिरी हिस्सा, जिसमें आखिरी 3 चाबियां मौजूद हैं। तो इंतहाई आसान है क्योंकि वो तमाम अल्फाज वही हैं जो हम उर्दू में पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। जायद, बढ़ाने वाला, जी बताइए, प्लीज बताइए। जायद, मजीद, ज्यादा। माशाल्लाह, जायद का लफ्ज, मजीद और ज्यादा, ये सब हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और तो यहाँ पर तो मजीद दिल चाहता है कि इंतहाई शुक्र अदा किया जाए अल्लाह का कि हम उर्दू बोलने वालों के लिए खास मेहरबानी है। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, ढेर सारे, जो हमने अरबी जुबान से ही बोरो किए हैं। तो इंग्लिश बोलने वालों की निस्बत हमारे लिए कुरान समझना इंतहाई आसान है। सुभान अल्लाह जी। तो ये टेबल हमारे सामने है। इस पर आप में से कौन प्लीज इसको फिल माजी को अरबी में दोहराना चाहेगा इशारात के साथ? जी, ब्रदर्स में से कोई भी आई थिंक अवेलेबल नहीं है आज। जी, आई थिंक नजफ, आई डोंट नो ब्रदर है या सिस्टर है। जी नजफ मसूद, अपना प्लीज आप माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिस्टर हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर प्लीज। ज्यादा उसने बढ़ाया, जादू उन सब ने बढ़ाया, जित्ता आपने बढ़ाया, जित्तू मैंने बढ़ाया, जित्तुम आप सब ने बढ़ाया, जिदना हमने बढ़ाया, जादत उस औरत ने बढ़ाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आई थिंक मोहम्मद फरजान आई थिंक लिखा हुआ है, आप प्लीज माइक ऑन कर जी लीजिए। जी। ये मैं करा दूं? आई डोंट नो आप कौन बात कर रही हैं? नहीं सर, आप जिनको मैंने पहले कहा प्लीज आप राबिया करवाइए। फरजान के रेफरेंस से। जी प्लीज, फरजान के रेफरेंस से बात करिए प्लीज। जी जी। ज्यादा, नहीं जी मुजारे, ज्यादा अपने फेल मुजारे, बाजी मुजारे। अच्छा, मुजारे। यजीद, यजीदू वो बढ़ाता है, यजीदूना वो सब बढ़ाते हैं, तजीदू आप बढ़ाते हो, अजीदू मैं बढ़ाता हूँ, बढ़ाती हूँ, तजीदूना आप सब बढ़ाता बढ़ाते हूँ, हैं, बढ़ाता हूँ, तजीदूना आप सब बढ़ाते हैं, नजीदू मैं हम सब बढ़ाते हैं, और तजीदू वो औरत बढ़ाती है। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आई थिंक ब्रदर नवीद हैं, प्लीज आप अम्र का जो टेबल है वो पढ़िए। मैं बना दूं? जिद, जिद, जिदू, ला तजिद, ला तजीदू, जायद, मजीदुन, ज्यादतुन। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह। और ये 6 चाबियां हैं जो हमें पिक करनी है। अगर ये हमें अच्छी तरह से हिफ्स होंगी तो हमारे लिए बाकी टेबल बनाना इंतहाई आसान होगा। और याद रखिए कि जो पहली 3 चाबियां हैं वो अफ़आल हैं, जो सुर्ख रंग में दिखाई गई हैं, और जो नीले रंग में दिखाई जा रही हैं आखिरी 3 चाबियां वो अस्मा हैं। ठीक है, फेल के टेबल में, अफ़आल के टेबल में आती हैं, लेकिन एक्चुअली ये अस्मा है, तो इसको हमने याद रखना है। सिस्टर अरोमा का हैंड रेज है अभी, माशाल्लाह। सिस्टर करा आप दूं? प्लीज ये 6 चाबियां बता दें। जी मैम। ज्यादा उसने बढ़ाया, यजीदू वो बढ़ाता है, जिद बढ़ा, जायद बढ़ाने वाला, मजीद जो बढ़ाया गया, और ज्यादा बढ़ाना। जज़ाकल्लाह खैर। जी, तो लास्ट में हमारे पास टेबल है। आप में से कौन ज़्यादा के पैटर्न पर कादा का टेबल बनाने की कोशिश करेगा फेल मादी के लिए? सिस्टर जाहिदा हैं, जी प्लीज सिस्टर जाहिदा, कादा का टेबल जी बनाने की कोशिश जी। कीजिए। कादा, कादू, कित्ता, कित्तू, का, कद, कदत, का, कत्तुम, कदना। जी जी जी, कोशिश कीजिए।
कदतुम कदना, नहीं 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 नहीं, ज्यादा की टेबल को ذہن में रखिए, फिर से शुरू कीजिए प्लीज. कादा कादू कादत कादतु कित्ता कित्ता, कित्तु कित्ता कित्तु कित्तुम, कित्तुम किदना कित्तुम. किदना, फिर और फीमेल कादत जो है खातून के लिए, जी ठीक है, कादत। जज़ाकल्लाह. जी, मुजारे के लिए आप में से कौन कोशिश करेगा? मैं जी जी, आप कीजिए प्लीज प्लीज. कादा का यकीदू, जी यकीदू, यकीदू, यकीदूना, तकीदू, अकीदू, तकीदूना, नकीदू. जज़ाकल्लाह. और खातून के लिए बाएं हाथ से इशारा होगा, तकीदू तकीदू. जी, अम्र और नहीं के लिए सिस्टर नजफ आप पढ़ लीजिए प्लीज. यू वांट कित ट्राई? जी कित खुफिया तदबीर कर किदू, तुम सब सिर्फ अरबी में, खुफिया तदबीर. सिर्फ अरबी में, अच्छा सिर्फ अरबी अच्छा में. जी. जी किद किदू ला तकिद ला तकीदू, काइदुन मकीदुन कैदुन. माशाल्लाह. हम कंप्लीट कर चुके हैं. आई थिंक हमने 1 आध मिनट एक्स्ट्रा ले लिया है, उसके लिए माजरत. सो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. आमीन या रब्बल आलमीन.